we are genuinely super happy to have you on board with us. We love the work that you've been doing, and with the last webinar's feedback that we got with you, we were more than happy to do this one again. So I'll give the stage over to you, and let's take this forward now. Okay, thank you so much for this wonderful introduction, सबसे पहले. And yes, we are back. So chat box में मैं जानना चाहता हूँ सबसे कि अभी क्या काम कर रहे हैं. Are they from the restaurant industry or not? Secondly, एक outlet है उनका या ज़्यादा outlets? Can you guys put it in the chat box, please? Okay, one outlet. Outlet का नाम, favorite cuisine. हाँ, clean shave disclaimer. Yes. That is one big mistake that I have made. I think everyone is behind you for that. I saw it on our reels and the invite. Everybody was behind you getting clean shaved. Exactly. More than 1,000 comments. Software. 9 outlets. Interesting. Chef. Okay. Lovely. Mehfil restaurant, 4 outlets. सही है. Crazy chai 5 years plus. Acha, hotel. Oh, a lot of people from restaurant industry, Himanshu. In fact, that's really good. Okay, we shall start the presentation. So the topic we are going to cover today is एक franchise business basically चालू करने के लिए काफी crazy efforts लगते हैं और एक approach लगता है. ठीक है? What all do you guys need in your checklist to start franchising your single outlet, or if you have crossed 10 outlets, jo bhi ho. So Himanshu will be taking over the presentation, and he will be taking ahead this flow. Okay. और आप समझाएगा कि एक franchise business को कैसे operate करना चाहिए. Okay, if you can share the presentation. Yeah. Yes, loud, visible. Just one second. Do we have Devarshi Malavia as well onto the group? Have you joined, Devarshi? Just a second, I'll check. Please check. Just a minute. Okay, let me know, Parth and Himanshu, like when you want me to start with your PPT. There you go, Devarshi is with me. Is he visible? Yes, he is visible. Hello. And we also have Rahul on board, and Siddhant is also on the call, I believe. Yes. So we can initiate. Yeah, so what we will do is, last time जो हमारा एक जो webinar हुआ था, I believe it was amazing because webinar के बाद जो हमारा communications हुए थे लोगों के साथ, I'll keep this communication more of an English and Hindi mix so that maximum audience जो उनको समझ में भी आए. Yeah. And भारत माता की जय वो भी होना चाहिए. तो आइडियली देखा जाए तो हमने प्रीवियस वेबिनार जो किया था उसमें से व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि जब भी किसी को भी फ्रेंचाइजी अगर एक एक्सपेंशन मोड पे लेके जाना हो, आप गूगल पे जाओ, आप चैट जीपीटी को पूछो, वो आपको जवाब सारे दे देगा. ट्रस्ट मी, आप जो पीपीटी भी देखोगे उसके जो हेड पॉइंट्स होंगे और डिटेल में आप जाओगे, आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा. द प्रॉब्लम लाइज हियर इज दैट कि एक जब रियल टाइम सिचुएशंस जब आती है वो टाइम पे हाउ यू नीड टू एक्ट and how you need to plan your expansion. Nobody can give you a formula that this is how you need to do. Every situation is different. Every person is different. Few people, when they're looking forward for an expansion, they have an aggressive mindset and aggressive mode of executing things. Few people, they are like, slow and steady wins the race. So it's all permutation and combination. So nobody can give you a right recipe for having expansion of your franchise business. But it is important to know your own brand and know yourself कि भी sync up कौन सा better है. So today, because of Parth, I believe we have got an opportunity, franchise goals, and we are here to present the basics, fundamental, and few of the cheat codes like what to do and what not to do specifically
when it comes to the expansion of the franchisee. We have here Devashi Bhai, who is the expansion head and director of franchise bulls as well, the first director. Siddhant here is his operation head. He takes care of overall supply chain management, operation, technological aspect as well. So we were able to build the operations of franchise bulls and few of the brands within a span of 2.5 months as well. That was something crazy जो हम लोगों ने बहुत quickly achieve किया था. And we have Rahul Kashyap from the infra department. So once the outlet आपके expansion जब initiate होते हैं तो वहाँ पे it is important for you to have a right set of team जो आपको expansion में help करे. आपने अगर एक फ्रेंचाइजी बेची हुई है तो उसका इंटीरियर जो है वो भी सही तरीके से होना चाहिए so that it looks like a brand. So taking it further, I'll not bore you off. आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगा टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से. एंड जो चीज आपको ऑलरेडी गूगल पे मिल जाएगी उसकी जगह पे I'll try to have a discussion with all of you and along with the intervention of Devashi Bhai, Siddhant and Rahul as well कि उनके specific department पे what they have understood. So if the audience right now here is जैसे मैंने अभी देखा that you know 2 आउटलेट, 1 आउटलेट है, 4 आउटलेट है, people are in the range of 1 to 10 outlets के आसपास. And believe me guys, if you can just take the presentation one step ahead. Yeah, so what we have understood, because Franchise Bull has been communicating with multiple brands, we have been in touch with more than 200 brands in and out, and हम लोगों ने वो भी समझा है कि इनके operations किस तरीके से function करते हैं. अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो what we have understood is कि it's not a big game to expand your franchisee. आपके पास अगर एक ब्रांड है, आपने पूरा PR मार्केटिंग कर लिया तो पॉसिबिलिटी है that you can take it to 10 outlets for sure. The challenge arises जब वो 10 आउटलेट हो जाते हैं, उसके बाद it is very difficult for you to give support system and eventually वहां से वो जर्नी backfire करती है. आपने मार्केटिंग के दम पे समझ लो 10-12 और भी बेच दिए, 20 आउटलेट्स आपके हो गए, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव राइट सपोर्ट टू योर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और कम्युनिकेशन लैग है आपके बीच में, देन द स्टोरी एंड्स देयर. और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होते हैं. तो द चैलेंजेस, जैसे बोलते हैं कि पैसा कमाना चैलेंज नहीं है, लेकिन कमाया हुआ पैसा जो है उसको बचा के रखना, दैट इज, और उसको ग्रो कराना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई बिलीव. सो इन टुडेज एजेंडा वी विल अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन फंडामेंटल्स. रेस्टोरेंट या कैफे, आपका जो भी ब्रांड है उसको लाइक रेस्टोरेंट को आप पर्सनली तो ब्रांड बोलते होंगे, लेकिन दुनिया के नजरों में ब्रांड किस तरीके से बनाना चाहिए, दैट इज वन पॉइंट. राइट टीम, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, आपके पास एक ही आउटलेट है, इफ यू आर वन पर्सन, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि एक सिंगल आउटलेट से आप एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट नॉट नेसेसरली कि बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट आपको लगता है, इट्स ऑल द राइट एटीट्यूड एंड फ्यू स्ट्रेटजीज व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू आउट. ऑपरेशन मैनेजमेंट, यस, ऑपरेशन आगे जाके तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. मार्केटिंग, अंटिल यू डोंट मार्केट योर ब्रांड नहीं बिकेगा. एंड टेक का रोल कहाँ पे आता है, एंड मोर ओवर आई बिलीव ये पूरे एजेंडा के अंदर आई बिलीव टेक हैज बीन अ वेरी कोर पॉइंट विच यूजुअली लोग बोलते हैं कि ठीक है टेक इंटीग्रेट कर दिया चलता रहेगा, लेकिन you won't believe the power of it. What we have understood from Paid Puja, all the restaurants which are using Paid Puja, मतलब हम लोगों ने जो 200 plus outlets के साथ काम किया हुआ रेस्टोरेंट्स के साथ, उनमें से 80% are using Paid Puja, and from them 50% are just using it for the sake of billing, simply billing के नाम पे यूज कर रहे हैं. But trust me, उसके अलावा के जो लोग हैं they are using it more than for billing. And the idea behind that is आपका जो डेटाबेस उसमें से निकलता है कि आपका फूड कॉस्ट कितना लगा, आपका वेस्टेज कितना हुआ, आपका सप्लाई चेन इन्वेंटरी मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, एंड इफ दैट यू आर यूजिंग, प्रोबेबली आप अपना फूड कॉस्ट और रेस्टोरेंट का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो. वी हैव बीन टॉकिंग टू मल्टीपल शेफ. एक शेफ ने कम्युनिकेट किया था कि बॉस जो वेस्टेज है दैट इज द प्रॉफिट व्हिच यू आर थ्रोइंग इट अवे. अब वो कैसा होता है, दैट इज समथिंग क्रेजी टू अंडरस्टैंड, बट यूजुअली हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. इवन एक बर्फ का जो बर्फ आइस मेकिंग मशीन जो है, उस आइस मेकिंग मशीन में भी अगर समझ लो कोई आइस लिक्विफाई होकर हम लोग ने पानी उसका फेंक दिया, दैट इज आल्सो वेस्टेज आइडियली देखा जाए तो. सो गोइंग इनटू डेप्थ तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, बट आई बिलीव आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू ऑफ विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग. आई विल मेक श्योर कि ऊपरी ऊपरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड फंडामेंटल्स आपको दिया जाए. मैंने एक पॉइंट बोल के फिर मैं आई हैंड ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर. If you understand, there are many examples in the market which you can see, and I would want कि आप लोग chat box के अंदर mention करें क्या, if you are aware of such kind of brand. You might have heard about success stories and quick expansion of multiple brands
एंड इवेंचुअली अचानक एक टाइम के बाद वो ब्रांड का नाम ही मार्केट में रुक जाता है, बंद हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वॉट एवर इट इज, बट इवेंचुअली क्या होता है, दे आर स्टक एंड दे आर नॉट एबल टू मूव फर्दर। उसके पीछे के जो फंडामेंटल रीजंस है, आई वुड वांट कि अगर आपको अगर वो नाम पता हो तो इफ यू कैन राइट इट डाउन, सो लेट्स सी। या सो मूविंग फर्दर, जब आपको ये आइडिया आता है कि एक लेवल पे जाने के बाद वो ग्रोथ स्टॉप की हुई है, लोगों को लगता है कि XYZ रीजन होगा, PR मार्केटिंग की वजह से इशू है, बट बॉस दैट इज नॉट द इशू। द मेजर इशू इज द ऑपरेशनल फंडामेंटल क्रैक। Trust me, the businesses which we have worked, the businesses which we have understood, और जिन लोगों का हमने अपसाइड और डाउनफॉल भी देखा हुआ है, उसके अंदर अगर आप 360 डिग्री जाओ तो घूम फिरा के एक ही चीज आती है, ऑपरेशन। And if operation is not sorted, yes, many people have mentioned the name. I believe all the brands are good. Probably they are doing their success story as well, but कहीं ना कहीं उन्होंने mistakes भी करी थी, and it's good to learn from the mistakes. I believe mistakes of other. बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने बोला हुआ है कि भी दूसरों की गलतियों से अगर आप सीखो तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि आप वो सेम गलती ना करो। So मेरे हिसाब से मैं अगर 6 पॉइंट बोलूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का आता है, एंड राइट टीम यू नीड टू हैव। इफ यू कैन जस्ट टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो फर्स्ट पॉइंट था एक्सपेंशन फंडामेंटल का, सो आई विल हैंड इट ओवर टू देवर्षि भाई। देवर्षि भाई, इफ यू कैन जस्ट गिव अ आइडिया एक्सपेंशन के लिए, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर जस्ट हैविंग वन आउटलेट, सेल्स के ऐसे क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं व्हाइल कम्युनिकेटेड इट टू द बायर, और प्रोबेबली व्हाट कैन वी डू एंड हाउ टू डू इट बेसिकली। कि आपने काफी सारे ब्रांड्स की जो जर्नी है, आउट ऑफ 2-3 आउटलेट्स आपने 200 आउटलेट्स तक खींची है, एंड मोर ओवर फ्रेंचाइज बुल्स के अंदर भी वी हैव डन अमेजिंगली नाइस। सो व्हाट डू यू फील दैट एक ब्रांड के पास ऐसी कौन कौन सी चीज होनी चाहिए सो दैट इट लुक्स लाइक अ लुक्रेटिव थिंग टू बाय? ओवर टू यू देवर्षि, प्लीज। Over to you. हाय गाइस। तो जैसा कि हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा, एंड वी ऑल आर दी ब्रांड ओनर्स, तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं न्यू ब्रांड ओनर से पूछता हूँ, जो आप ब्रांड रन कर रहे हो, कि विच काइंड ऑफ मॉडल यू वुड लाइक टू गो फॉर। आज के टाइम में अगर आपको स्केलेबिलिटी और नेटवर्क पे काम करना है तो इट्स वेरी इजी कि हम फ्रेंचाइजर वाले मॉडल पे पेनिट्रेट करते हैं, वेयर वी आर गोइंग एंड लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर, वी आर गेटिंग द फ्रेंचाइजी, और हम फ्रेंचाइजी को पेनिट्रेट करते हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा वी हैव टू लुक फॉर अदर मॉडल आल्सो। क्या हम फोफो कर रहे हैं, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, या हमारे पास फीको मॉडल्स हैं, या हमारे पास फोको मॉडल हैं, प्लस क्या हम एक छोटे काउंटर मॉडल पे भी जा सकते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, हम कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं। वी हैव टू गो फॉर अ टिपिकल डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स आल्सो। ये हमें हमारे जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें काफी हेल्प करता है। अगर हम एक सिर्फ ट्रेडिशनल वे में बढ़ना चाहते हैं, जितने भी आपने ब्रांड्स ये यहाँ पे मेंशन किए, इन्होंने टिपिकल तरीके से ही मार्केट में कदम रखा, और आज के टाइम पे इन्होंने 15 लाख रुपए से लेके 25-30 लाख रुपए तक के मॉडल बनाए, जहां पे ROI को निकालना और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्कआउट करना ये बहुत उनके लिए टफ हो गया है। जैसा कि हिमांशु ने बोला, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन आर दी वेरी की फंडामेंटल। अगर हम इसके बेस पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ROI को निकाल सकते हैं, बट नाउ द टाइम हैज बीन चेंज। द काइंड ऑफ इन्वेस्टर आई एम टॉकिंग, दे आर सेइंग कि हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो तो आइदर छोटा हो, काफी छोटा, 5 से 8 लाख रुपए के बीच का कोई मॉडल हो जिसमें इन्वेस्टर का ROI निकल जाए, या फिर हमको एक लग्जरी लॉन्च मॉडल प्लेस करना है बेस्ड अपॉन दी क्राइटेरिया। देवर्षि भाई, मैं आपको 1 मिनट होल्ड करूंगा, बिकॉज यहाँ पे काफी लोगों ने फोफो मॉडल के बारे में कम्युनिकेट किया है। उसके बारे में आई वांट यू टू थोड़ा और एक्सपेंशन से आप बताओ, बट मेरा एक पॉइंट मैं बोल देता हूँ। गाइस, फोफो मॉडल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है दैट इट्स फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। मैंने कम्युनिकेशन के इनिशिएशन में ही बोला था दैट एवरीवन हैज अ डिफरेंट माइंडसेट ऑफ वर्किंग। व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद मल्टीपल ब्रांड्स, फोफो मॉडल के अंदर भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट the brand should have certain control over the outlet. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर वहां पे हायरिंग से लेके सप्लाई चेन से लेके सब कुछ मैनेजमेंट अगर ओनर के हाथ में आपने देके रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज दैट वहां पे इश्यूज होंगे, बिकॉज इट्स अ फोफो मॉडल। आपने अपना ब्रांड बेच दिया, ब्रांड बेचने के बाद आप सामने वाले को बोल रहे हो कि दैट आप देख लो अपने हिसाब से, अगर वो चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो दैट इज योर प्रॉब्लम, एंड इवेंचुअली वहां पे सिस्टम फेल होता है। What we have identified and what we have agreed upon with many multiple franchise owner is that वहां पे कंपनी के एंड से एक ट्रेंड मैनेजर जो है दैट हैज टू बी देयर, जिसका पेरोल जो है वो कंपनी के एंड से होगा,
उसका जो सैलरी है वो फ्रेंचाइज ओनर जो है वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा 1 मंथ एडवांस के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज वर्कड वेल। मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ इसमें। होता यह है कि वहां पे जो मैनेजर आपने सेटअप करके रखा हुआ है, वो मैनेजर उसी का सगा होगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी देसी, वो उसी का सगा होगा जो उसको पैसा दे रहा है। So say for example, if the manager is getting paid from the franchise owner's end, he will do what exactly franchise owner is communicating. And eventually, if franchise owner has a stronghold onto it, he might mess up things for you because आपको operations पता है, you know the operations better. So that's why you need to appoint a franchise manager there on your payroll, having an agreement and legal aspect, making sure कि वो अपने हिसाब से he cannot change that marketing manager, और वो अगर change भी होता है, so it's company's responsibility to set up that particular manager. If you are able to execute this thing, you have control over outlet, or else the franchise owner will do whatever he want to have. उसका घर पे झगड़ा हुआ होगा, he will come and he will shout at the people. Probably neatness and cleanness नहीं रखेंगे, माल अगर जो आपसे लेना चाहिए वो किसी और से ले लेंगे. So eventually to have a control, this is one single point. Legal aspect के ऊपर आपके agreements के अंदर भी ये चीज mentioned होनी चाहिए, and you need to have a strong control. Otherwise आपके हाथ से कब चीजें छूटेंगी आपको पता नहीं चलेगा. Devanshu, over to you. This was my point. I believe that it was something which was very core. So please, over to you. Yeah. As Himanshu has been said, this is a very critical situation and a very, very important point. FOFO is actually very easy. When any brand owner, they want to penetrate in the market, they want to go looking for a growth. So FOFO is a kind of model where you can attract the investor very easily. But nowadays we have to understand the pain area of that investor. Look, somebody who is investing money on our brand, he is not aware about the F&B industry. He is totally unaware about the operation structure, manpower. सुबह मॉर्निंग में सब्जियां कहां से आएंगी, प्रिक्योरमेंट क्या है, लोकल फूड कॉस्ट क्या है, ही इज नॉट अवेयर. उसको सिर्फ इतना पता है कि F&B के अंदर जो मार्जिन है, इट इज लाई बिटवीन 45 to 60%. अगर मैं अपना पैसा लगा देता हूं तो मेरे को यहाँ से पैसा मिलेगा. तो फोको में इफ वी आर गोइंग फॉर अ फोफो, देन वी नीड टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन मॉडल, जहां पे ट्रेनिंग मॉड्यूल, एसओपी मॉड्यूल, अपना जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए पेट पूजा, दे आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक. ऐसे ही लोकल प्रिक्योरमेंट, ये हमको शॉर्ट करने. नाउ समथिंग डिफरेंट इज कमिंग व्हिच इज कॉल्ड अ फोको मॉडल, व्हिच इज कॉल्ड फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड. If you go and see the bigger multiple brands, the multinational brands like CCD, Subway, they gave the franchisee, but the entire operation they took under their control. The franchisee, those who are investing the money, they are not allowed to go backside of the kitchen, or they can play a role over there because the entire staff is provided by the company. Now here company is playing a very vital role because there are two kind of revenue model in the cafe. The primary, that the sales is happening. Second thing, he has to order the raw material, packaging material from the brand. If we are going into a FOCO model, it is given a bigger perspective to the brand, and the brand owner, franchise, they are liable to purchase raw material, packaging material, and other things from the brand itself. Plus, brand is getting better. I believe we have lost them. We are back. Sorry. So this is something a FOCO model. आज के टाइम पे गवर्नमेंट की बैक्ड बाय सपोर्टिव हमको स्किल इंडिया हो गया, अपना मैन पावर को ट्रेन करके रखना, इट्स वेरी इजी. देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो यहाँ पे की वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द मैन पावर फॉर द इन्वेस्टर, और इस तरीके से एक सस्टेनेबल स्केलेबल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड फोको. देन वी हैव अनदर मॉडल which is a FICO. So FICO is a model where the franchisee owner, they are investing the money into a brand. Now we have to understand one thing, like FOFO and FOCO, FICO is a totally different model. In FOFO and FOCO brand, they are doing, they are taking a royalty part, and they are taking a franchise fees. Here in the FICO model, the brand owner and the investor, they are going into a investor agreement. Here profit sharing will be 50-50%. So now brand owner, they are getting a chance that they are getting the money to establish the brand, plus they are owning 50% of the profitability. So
while penetrating and looking for a growth, we have to understand which kind of model we are going, which territory we are entering, and how much support we can provide from our side. Himanshu. Thank you, Devashi bhai, for giving this picture regarding expansion on the part. So if we can take this presentation ahead, one slide ahead. Yeah. So guys, इसमें एक और part था that brand persona. Frankly speaking, that if I have a brand, like say for example I have a business, मैंने उसका ABC cafe रखा हुआ है, मेरे लिए personally तो वो brand है, क्योंकि obviously अपना बच्चा तो सबको प्यारा लगता है. But the point here is that when it comes to the world, how the world is going to perceive you, उसके एक brand persona अलग होती है. So it is important. जैसे कुछ brands जो है, we have been working with few brands जो 30-35 साल से मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, but they are not able to build a brand out of it. Like you know, they said we are just there. हमारा फूड जो है वो बहुत लोगों को पसंद है, बट पॉइंट ये है कि दैट वी आर नॉट एबल टू कम आउट एज अ ब्रांड इन द मार्केट. लाइक यू नो, पीपल से कि देसी धंधा है, कि भुजिए वाला एस्पेक्ट चल रहा है, हमें उस नाम से जाना जाता है. we want to be known, you know, at a level of Bikaji and stuff. That is called a brand. So वो brand persona क्या है? It is important that there are certain specialists you go and talk. I'm not seeing that, you know, आप you come to us and stuff. The point is कि आपके in and around ही ऐसे लोग होंगे who can actually give you an idea, clear cut idea, and provided if you feel that, you know, if you get an information for free, that's best. If not, then I believe the thing which you don't know or you cannot do, let the master do it. What हम लोगों ने भी यही चीज किया. हमारे केस के अंदर, say for example, if PR is something which we are not good at, so probably we did a partnership with somebody who can actually do a good PR for us rather than we doing it, क्योंकि हम लोग जो 10 दिन में करेंगे वो 1 दिन में करेगा. So time is important. यहाँ पे time and money is very much important. आप दोनों के दोनों सेव नहीं कर सकते हो. अगर आपको टाइम सेव करना है तो मनी एक्सपेंस करना पड़ेगा, और मनी सेव करना है तो टाइम एक्सपेंस करना पड़ेगा. दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, operation of a business. Siddhant, are you there? Yes, Himanshu. Yes. So Siddhant takes care of the operation part for us, and he also got an opportunity to have a word with multiple franchise owners जिनके already 10-15 outlets के ऊपर हो चुके हैं, and challenges जो face हुए basically. So Siddhant, in short, because you know Q&A session भी हमको करना पड़ेगा थोड़ी देर में, and that is more fun I believe. So उस केस के अंदर operations को देखते हुए what you are identified that brand owners जो 10-12 आउटलेट के ऊपर जा चुके हैं, या तो जो अभी एक्सपेंशन फेज के अंदर है, उनके वहां पे ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड व्हाट चैलेंजेस यू हैव आइडेंटिफाइड. सो थैंक यू हिमांशु. अगर अपन ऑपरेशंस की बात करें, सो एक डेफिनेशन सिंपल सी ऑपरेशन की, इफ एनीथिंग इज मूविंग इन और आउट ऑफ द आउटलेट, वो ऑपरेशंस में आता है. अगर वो फूड है, अगर वो इन्वेंट्री है, अगर वो इंफॉर्मेशन है, अगर वो बिल है, अगर वो मनी है, जो भी मूवमेंट इन और आउट हो रहा है वो ऑपरेशंस में काउंट होता है. अगर आपका ऑपरेशन सॉर्टेड नहीं है या कोई भी चीज टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही है, तो अगेन इट्स ए प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, आपका डिलीवरी फूड 90 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक का अगर होना चाहिए, तो इट्स ए स्टैंडर्ड की इतना होना चाहिए. रीजन बिहाइंड की वो स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया है. अगर आपने ये सिस्टम बना रखा है कि बिना बिल के आप किसी को फूड नहीं देंगे, तो वो एक ऑपरेशन है. तो जहां भी ऑपरेशन आपका लैग करेगा, वहां आपको मॉनेटरी लॉस होता है. फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑपरेशन एसओपी डिजाइन कर रखी है कि एक मिल्क शेक बनाने में आपको 25 ग्राम आपको प्रीमिक्स डालना है. वो 25 ग्राम की जगह पे अगर 30 ग्राम में 35 ग्राम का आपका स्ट्रक्चर चला गया, या आपका जो प्रीमिक्स है वो चला गया, वो आपको मॉनेटरी लॉस है. एनीथिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉनेटरी एस्पेक्ट. अगर आपका ऑपरेशन ज्यादा लंबा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिलीवरी कम कर पाएंगे. आपका ऑपरेशन अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो 2 बंदों की जगह 4 बंदे लगाने पड़ेंगे, तो अगेन इट्स ए लॉस. तो अगर आपका इन एंड आउट ऑपरेशन सॉर्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉनेटरी होता है. सो यहाँ पर I have a question for you. Yes. Now when जो आपने अभी बोला, it looks like a very technical vast explanation of things. मैं अगर एकदम बहुत बेस लेवल पे आके अगर बात करूं, that say for example if I'm an owner who is running one outlet and product में दम है, सब कुछ सही है, अगर मुझे समझना हो या मुझे समझाना हो या फिर मुझे एक्सपैंड करना हो, तो ऑपरेशन को मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? यू आर टेलिंग मी कि आप सारी चीजें रखो, सब होना चाहिए, इंपॉर्टेंस आपने मेरे को बता दिया, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन वेरी बेसिक? फर्स्ट स्टेप बेसिक, जो सामान आ रहा है और जो सामान जा रहा है उसका ध्यान रखना. इन्वेंट्री आ रही है, उसका पूरा एक एसओपी आपको डिजाइन करना है.
और वो कितनी देर में बन रहा है उसका आपको एसओपी बनाना है, और कितनी देर में डिलीवर हो रहा है उसको आपको एसओपी बनाना है। अगर आपने अपना फूड मैनेज कर लिया तो आपने सब कुछ मैनेज कर लिया। अगर आपकी इन्वेंट्री ऊपर नीचे हो गई तो भी प्रॉब्लम है, फूड बनाना डिलीवर करना अगर ऊपर नीचे हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको फोकस स्टार्ट करना है तो आपको ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा इन्वेंट्री और फूड डिलीवरी से। तो सिद्धांत, इसमें एक मेरा व्यू पॉइंट ये रहेगा दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आई बिलीव the market leader right now is basically पेट पूजा, and moreover कभी कभी इशू ये भी होता है that it becomes difficult for people to understand, क्योंकि कोई भी टेक आप पहली बार अगर यूज कर रहे हो तो उसके बैकएंड में जाके रिपोर्ट जनरेट करना, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। सो आई हैव पर्सनली सीन इट, एंड इवन बिफोर एसोसिएशन विद पेट पूजा, that पेट पूजा कस्टमर केयर सेंटर इज अमेजिंग, बिकॉज वहां पे अगर आपने कम्युनिकेट करके ये बोला दैट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट, और मे बी प्रोबेबली आगे जाके मैं एक्सपेंशन मोड पे जाने वाला हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी और गिव मी एन एग्जांपल, और मेरे लिए एक डेमो सेट करा दो। सो आई बिलीव पेट पूजा हैव gone to that level where for an individual as well they have managed to give that particular training, moreover YouTube के ऊपर, और probably they have their own library as well. Yeah, if you can give an idea regarding this information, कि अगर किसी को backend के अंदर ये चीज समझनी हो, so where he can look forward for, because when it comes to operation, सिद्धांत, so Siddhant has communicated कि first step is basically कि आपको inventory manage करनी है. So Now the paid पूजा is already have an inventory management setup pura. So if as an individual somebody want to see that, where to look forward for it? So in the billing backhand that a merchant has, you can get it, and Paid Puja also provides like a whole training before and after also you get the POS. So if any individual wants to learn, because it's a very elaborated thing, we've got all the integrities involved in it. So we give training for when the POS is set up, and also post the POS is set up and you still want to learn more about the dynamic reports or the inventory management, we give full hand training. It could be a physical training as well as a virtual training for them. Okay. Thank you so much. Yeah. So Himanshu, I'm very much curious to take over operations वाला सवाल, because Yes, please. I've always been into operations, ठीक है? पहले तो सब ये चैट बॉक्स में बताओ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्टाफिंग एक इश्यू है या नहीं, कौन कौन फेस कर रहा है? बहुत बड़ा इशू लगता है। नो नहीं बोलेगा इसमें कोई नो नहीं बोलेगा। Okay. So basically operations किस लिए बिजनेस में यूज होता है, पहले मैं ये बताता हूँ, ठीक है? ऑपरेशंस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिंग योर बिजनेस, ठीक है? कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे चलना चाहिए। सबने, किसी ने कभी मैकडॉनल्ड्स में कैसे ऑपरेशंस होते हैं वो देखे है क्या? मतलब आप बर्गर लेने जाते हो तो थोड़ा किचन में झांक के देखा है क्या? अच्छा, मोस्टली सबने देखा है। कैसे लगती है आपको ऑपरेशंस मैकडॉनल्ड्स की? ओके, बढ़िया, ऑटोमेटिक। ओके, सो बेसिकली ऑपरेशंस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिंग योर बिजनेस। मेरे खुद के आउटलेट अगर होता, विच इज गोइंग टू लॉन्च सून बाय द वे गाइस, ना, ठीक है, हमारा खुद का आउटलेट आ रहा है। ओके, सो मेरे खुद के आउटलेट में मैं 3 चीजों पे फोकस करूंगा। सबसे पहले बेसिक्स, ओनली बेसिक्स। 1 इज रेसिपीज, ठीक है? सेकेंड इज एसओपी, ठीक है? एंड तीसरा किचन इक्विपमेंट्स। ये 3 चीजों पे मेरा सबसे पहले फोकस जाएगा, ऑफ कोर्स विद टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक्नोलॉजी के लिए पेट पूजा तो होगा ही, बट एसओपी डिजाइन करने में, एक प्रोसेस डिजाइन करने में, डिफाइन करने में। सेकेंड इज रेसिपीज। रेसिपी ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ शेफ को नहीं, कोई भी आके बना के दे जाए। एग्जाम्पल, ग्रिल सैंडविच है, तो रेसिपी कैसे बनेगी? 100 ग्राम पनीर डालना है, 20 ग्राम कैप्सिकम डालना है, 40 ग्राम कैरेट्स डालने हैं, इतना मेयो डालना है, इतना स्क्वीज मेयो डालना है, इतना स्क्वीज चिपोटले सॉस डालना है। That should be defined in such a way, और वो किचन पे ऐसा चिपकाया होना चाहिए कि कोई भी लेमैन अगर आता है, ठीक है, मतलब जिसको सैंडविच बनाना नहीं आता, वो भी आपको सैंडविच बना के दे दे। That is what McDonald's has automated in their recipes. Second is SOP. आपके आउटलेट का पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? That is a SOP. सो एसओपी अलग अलग आती है, किचन की अलग एसओपी आती है, टेक्नोलॉजी की अलग एसओपी आती है, आपके आउटलेट्स पे टेबल चेयर्स का प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेसमेंट,
कैसे होगा वो पूरा एसओपी में कवर होता है. दैट इज सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ योर रेस्टोरेंट. ठीक है. एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किचन इक्विपमेंट्स कितने ऑटोमेटेड है आपके. ठीक है. अगर ग्रिल सैंडविच बना रहे हो, फ्राइज बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो या पिज्जा बना रहे हो. किसी का आवाज बहुत आ रहा है. सो सॉरी. दैट इज Guys, can you please all unmute, like keep yourself mute, please, so that there's no disturbance. हाँ. तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका किचन किस तरीके से डिजाइंड है. किचन इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि अगर आप मसाला ओके फाइन. सो रेसिपी किचन इक्विपमेंट ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि आप खाना कितनी देर में जल्दी सर्व कर पाओ. ठीक है. जैसे बर्गर हो, पनीर बटर मसाला हो, नूडल्स हो या पिज्जा हो. पिज्जा अगर बना रहे हो तो नीचे एग्जांपल सॉस डाल दिया, कैप्सिकम जो भी मिक्सचर से टॉपिंग्स डाल दिए, ऊपर ही माइक्रोवेव होना चाहिए. सो यू कैन पुट द पिज्जा इनसाइड एंड टेक इट आउट इन द मेंशन्ड टाइम फ्रेम दैट इज मेंशन्ड इन द रेसिपी. पनीर बटर मसाला है तो इधर ग्रेवी मिक्स हो रहा है, उसके आजू बाजू का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेवी रेडी ग्रेवीज का या रेडी वेजिटेबल्स का. सो यू हैव टू यू नो द की पार्सल टाइम should be sorted in your kitchen equipments. These are the three things I believe that basic operation structure ready करना चाहिए आप लोगों को. पर लास्ट टाइम भी हमने ये कम्युनिकेट किया था लास्ट वेबिनार में. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेनी पीपल कॉन्टैक्टेड अस एंड दे सेड कि यार इफ यू कैन शेयर अस अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन एसओपीस के लिए. तो वी हैड सम मैनुअल्स रेडी फॉर अस, सो टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ योर ओन थिंग कि भी एसओपी किस तरीके से होती है. तो वी सेड कि यू नो जस्ट मैसेज इट अक्रॉस, और या तो फिर आप अपना मेल आईडी या नंबर ड्रॉप इन कर दो इस नंबर पे एंड वी विल शेयर इट अक्रॉस. वी शेयर्ड एवरीवन, हमने सबको शेयर किया. You won't believe what happened after 7-8 days. सबके रिप्लाई भी आना शुरू हो गए. Everyone said one thing that ठीक है ये तो एक स्टैंडर्डाइज वे में आपने बता दिया, बट मेरे बिजनेस के हिसाब से ये सेट नहीं होगा. तो that's the catch here. Every business, every location, every method need to have that specific SOP designs for that own function. लोगों को ऐसा लगता है that कि गूगल पर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पीडीएफ बहुत सारे आते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 2D 3D पूरे लेआउट जो होते हैं, हम एक मूवी आप देखना, इट्स कॉल्ड फाउंडर्स एंड इट इज बेस्ड अपॉन जो आपका मैकडोनल्ड्स है, हाउ इट वाज क्रिएटेड. दो भाई, उसमें एक मार्केटिंग का जीनियस आता है एंड ही टेक्स दैट ब्रांड अहेड. उसमें एक सीन है कि टेनिस कोर्ट के अंदर एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्व डमी, मतलब वो बर्गर बनाने से लेके चॉपिंग से लेके वो सब ट्रायल कर रहे थे वो लोग. एंड जब वो उन्होंने किया, आई बिलीव वो आपको वो एक वीडियो प्लीज इसके बाद वो देखना चाहिए आपको. दैट विल गिव यू अ क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली ऑपरेशंस मीन. कि अगर आपको 2 मिनट के अंदर एक बर्गर सर्व करना है तो हाउ टू डू इट. द नेम ऑफ द मूवी इज फाउंडर्स, और वो फाउंडर के अंदर आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ इतना लिखना, फाउंडर्स टेनिस कोर्ट सीन, and believe me you will understand exactly what Parth is trying to explain. that आप कितने भी डॉक्यूमेंटेशन उठा लो ऑनलाइन पर से, गूगल पर से, बट मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, बिकॉज लोकेशन आपका है, प्रोडक्ट आपका है, मशीनरीज आपकी है, यूटिलिटी आपकी है, एंड दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट कि हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. एवरी सोल्यूशन हैज अ वेरी वेल ड्राफ्टेड इंडिविजुअल एस्पेक्ट. Yes, at the end of the overall session, we will share our number and we will also share the email ID where we can connect with you. And I believe एक फॉर्म भी है जो पेट पूजा ने सेटअप करके रखा हुआ है, and वहाँ पे we can get that detail and we will shoot across the details to you. Please fill that thing and we would love to share all the information and have a conversation, because every problem is unique and it should be dealt uniquely in terms of solution. So that's the fun. So we can take the presentation little ahead. चलो ऑपरेशन से आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ऑपरेशंस पे ही है हम लोग. हम अभी भी ऑपरेशंस पे. So Parth, if you can throw a little light regarding this part. Yes. आउटलेट मैनेजमेंट. सबसे पहले स्टाफिंग तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, किचन ऑपरेशन, सप्लाई चेन, मैन पावर, पेमेंट ट्रेंड्स. अच्छा, टेल मी समथिंग. चलो रेस्टोरेंट ओनर से पूछते हैं कि पेमेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कि मेजर लोग आपके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, वो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से, या कैश दे रहे हैं? जल्दी जल्दी बता दो यार सब फटाफट.
UPI cash, UPI cash, UPI cash, UPI cash. So we can figure out that UPI transactions का ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है. क्रेडिट कार्ड का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, डेबिट कार्ड का भी ट्रेंड बढ़ रहा है. तो एक प्रीपेड पेमेंट मैनेजमेंट आपको लेना पड़ेगा जो तीनों में इन्वॉल्व हो जाए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बार कोडिंग सिस्टम्स, ठीक है. तो पेमेंट ट्रेंड के हिसाब से यू हैव टू सेट अप दैट इंटीग्रेशंस ऑल टुगेदर, ठीक है. मैन पावर हायरिंग, फायरिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है. मैन पावर के लिए मेरी ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है. मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज का हायरिंग मॉडल क्या है, किसी को पता है? अच्छा. सो मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, सो 40% is the fixed holding staff at their chain. This is only possible when you have a chain of outlets, okay. Rest 60% are from hotel management institutes, interns, specifically interns which keep on shuffling. तो होता क्या है, जो उनका 40 से 50% रिजर्व्ड होता है हायरिंग, they overpay them and they underpay their interns, so that is how they balance it. सेकेंडली, जैसे हिमांशु ने बताया कि हर एक आउटलेट पे मैनेजर तो आपका ही होना चाहिए विच इज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है. सो दीज आर द टू ट्रिक्स ऑफ मैन पावर हायरिंग विच आर लिटिल यू नो uncommon right now in the industry, hotel industry in India. But Himanshu, if you can throw some more light, इन दोनों के अलावा कोई तुम्हारा पर्सपेक्टिव है? मैंने मेरे दो चीजें बता दी है मैन पावर हायरिंग में. See, manpower, जैसे सबने बताया that it's really a challenge. You know, you cannot define that इसको एकदम कोई easy way solution होगा. It's a very tough task to go for. Eventually you need to know कि आपको hiring किस basis पे करनी है, कहाँ से करनी है. I believe we have Skill India. It can provide you the skilled labor for sure. But again, there is also a challenge. कुछ लोग अपना खुद अलग दिमाग लगाते हैं that you know we will get people from Nepal, we will get people from Kolkata and from other states and without even doing a background check and stuff, वो आगे जाके प्रॉब्लम में पड़ते हैं. कुछ लोग इस स्टेज में होते हैं that you know we will hire locally and hiring locally के अलग अपने challenges हैं. So point ये कि आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको लोगों को हायर करना पड़ता है. And at the end of the day, there has to be some engagement activity for them as well. Lovely. I have seen people and owners जो लोग उनको इतना रगड़ते हैं बुरी तरीके से कि सुबह 8 बजे आपने आउटलेट खुलवाया, सुबह रात को 10 बजे तक वो काम करे ही जा रहे. दोपहर को उनको थोड़ा खाना वाना दे दिया, शाम के टाइम पे खाना दे दिया. So if you don't respect your people, they will not respect your business. And generally ये कहा गया है that you know you take care of your team and team will take care of your business. So I believe the manager and the staff, even the sweeper as well in the system, he is your team, and if you take care of your team, they will definitely take care of your business. How you are dealing with them, how you are communicating. If you are angry, अगर आपका थोड़ा सा aggressive nature है और आप उनके ऊपर हरदम bombard करो. एक अफ्रीका की एक story है basically, you know, ये किसी ने सुनी कि नहीं पता नहीं, but the story says this way that in अफ्रीका में लोग पेड़ को काटते नहीं है. They don't axe the tree. What they usually do is, और ये गूगल पे आप चेक कर सकते हो, this is the real story. They will just go around that particular tree. If they don't want that tree, they will just go around that tree and वो सिर्फ उसको रोज गालियां देना शुरू करेंगे, literally रोज गालियां देंगे, and you won't believe that you know it automatically dies off. This is a story, you can confirm this story basically on Google as well. This happens in Africa. It's a normal thing. We are human being. आप रोज एक आदमी को अगर चिल्लाओगे, if you don't keep him on track, you don't consider him as a human being and you treat him like just a worker, eventually he will not stay with you. That's the basic problem. लोगों को लगता है कि मैन पावर स्टाफिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है, लोग नहीं मिलते या लोग ठहरते नहीं है, पर कोई उसका मेजर चैलेंज आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की, वो ठहरते क्यों नहीं है. If you're giving a right salary, if you're treating your people right, if you're showing them a growth trajectory, probably they will stay. I'm not saying कि उसकी वजह से 100% retention rate रहेगा, but at least the environment and your overall outlet का culture जो है वो इस तरह से रहेगा that at least deliverability जो है वो एक अच्छी तरीके से होगी. Again, it's a vast topic to discuss, and as everybody said that manpower hiring is a very difficult task. I believe firing is even difficult, and it takes guts to do those things, and identification of new staff is also a challenge, but we have identified multiple things that उनका एक पूरा growth trajectory क्या होना चाहिए,
एंड लीगल पार्ट के अंदर यस, समबडी आस्क्ड दैट लीगल पार्ट के अंदर जब भी आप स्टाफ ले रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उनका जो बैकग्राउंड चेक है वो होना चाहिए, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। आप अगर एक आपके जो सारे स्टाफ है आप एक ही रूम के अंदर अगर उनको रख रहे हो, वो जो घर आपने लेके रखा हुआ है उनके लिए वो किसके नाम पे, आपको ये भी ध्यान देना है। कल उठ के वी हैव सीन गाइस केसेस कि आपने स्टाफ को जस्ट टू नो सेव कॉस्ट, आपने आउटलेट के पास में एक स्टाफ को घर देके रखा हुआ है और वहीं पे आपके 4-5 स्टाफ बैठे हुए हैं, एंड इवेंचुअली दैट इज ऑन नेम, आपके नाम पे है वो। कल उठ के वहां पे अगर कुछ भी इशू होता है, अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई मारामारी हो गया, सम एनी अदर इशू, वो इशू मेरे को बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं, बट आपको पता होगा कि कोई भी इशू हो सकता है, इवेंचुअली दैट विल बैकफायर यू एंड योर ब्रांड एज वेल। उस केस में क्या सोल्यूशन होने चाहिए, हाउ यू कैन सिक्योर योरसेल्फ लीगली, आई बिलीव इट्स अ वास्ट टॉपिक and we would love to have a conversation with you, and we will share the details which is readily available to you. So we are making sure that आप जब भी हमको कनेक्ट करो in terms of mail ID, उसमें आपके जो challenges है आप अगर वो शेयर करोगे तो it will be more easy for us to revert back on the respective topic as well. And I believe we can initiate this Q&A session because I believe I want to interact with people that you know what is their viewpoint. अभी जितना उन्होंने सुना उसके बेसिस पे what do they think? Riya, are you there? Yeah. Yeah, I'll to conclude manpower management, मैं 4 चीजें बोलूंगा, ठीक है? So first of all, कितने लोगों को पता है कि लेबर लॉ क्या होता है रेस्टोरेंट के अंदर का? किसी को पता है? Have you guys covered your people under labor law? किसी लिए? Okay, fantastic. No. ठीक है. So basically लेबर लॉ कॉम्प्लायंस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपको कवर करना होता है। ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज बुल्स हैज द आंसर टू इट, यू कैन आस्क देम ओवर अ ईमेल, ठीक है, आपको जिस ईमेल आईडी में। सेकेंडली, कितने लोग लेबर इंश्योरेंस कवर करते हैं? लेबर इंश्योरेंस भी होता है, दैट इज अ वेरी लो प्रीमियम। मैं एक एडिशनल फैक्टर देता हूँ, यंग मॉन्क हॉस्पिटैलिटी, वंडरफुल यार, इनको मिलना पड़ेगा। यंग मॉन्क, दे हैव डन इट, lovely. So there is something called labor insurance as well, that is a very minimal premium, ठीक है, वो इंसिडेंट प्रॉपरली कवर कर लेता है। तो ये 2 चीजें। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट व्हिच आई मेंशनड, स्टाफिंग के 2 सॉल्यूशंस आपको दिए व्हिच यू कैन प्ले अराउंड विद। ओके देन, पर इसमें I would want to name few of the portals through which you know you can actually hire. So one is Hirect, वहां पे अगर आप अपना एक अकाउंट खोलोगे वहां से आप कर सकते हो अपना हायर करके। there is an application through which you can do. There are some certain local agencies which can help you to hire. Skill India जो है, if you register yourself with Skill India, they can also provide the skilled labor to you. Cook Finder is one more place. Work India is one more. Recruiter is one more. MyRocket.com is one more, and there are many more. The point here is that कि opportunities available है, एक एफर्ट लेके वहां पे रजिस्टर करके राइट टाइम पे वहां पे जेडी आपको डालना पड़ता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वंस यू डू इट फॉर वंस, आई बिलीव इट्स नॉट अ बिग डील। फिर somebody has asked, is there any specific company to start up recruiting in restaurant industry addressing this issue? I believe I answered this question to you. It's not about आपको कंसल्ट तो लोग कर देंगे, बट आई बिलीव इवेंचुअली एग्जीक्यूशन आपको खुद को ही करना पड़ेगा। Yes, please put this list of recruiters. Sure, I'll make sure that I'll paste it. ठीक है। Yes, yeah, over to you. yeah, we can quickly cover more topics जो भी pending है। Yeah, I believe pending topics तो इसके around ही roll out होते हैं पर I would want to have an interaction with people. That is more fun. Right? Last time which we did it was more fun. So yes, open for the discussion. Please, if somebody have any questions. I think like a lot of people have a lot of questions. So we'll start with the Q&A round. Everybody who else, we all can just start putting questions in the chat box. Please don't try to unmute yourself and talk. Just put it on the chat box. We'll answer all the questions. In case by end of the time your questions are not answered, we'll send out an inquiry form where you can write in your questions. You can get in touch with Mota Bhai's team or as well as Pet Puja's team. It's all there, so you don't have to worry about that. Why would the first one is, why would a franchise owner agree for FICO model? What does it benefit owner or franchise owner? देखो यार, सुकून के लिए Exactly. 2 चीजें होती है। मैकडोनल्ड्स इज वन बिग एग्जांपल ऑफ FICO मॉडल, ठीक है। सो बेसिकली FICO मॉडल में क्या होता है,
जो फ्रेंचाइज ओनर होता है वो इन्वेस्टर बन जाता है। दूसरा, कंपनी उसको ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। वन सच एग्जांपल इज ग्रेस कॉफी एज वेल। कंपनी फंक्शन पूरे आउटलेट को करती है, रीजन बीइंग द कंपनी इज वेरी एक्यूरेट अबाउट देयर ब्रांड, देयर रेसिपीज, देयर एसओपीज। ज्यादातर फीको मॉडल बड़ी कंपनियां करती है, छोटी कंपनी नहीं करती है। लग्जूरियस मॉडल्स आर फीको मॉडल्स मोस्टली, आई मीन हाईली एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजीज आर फीको मॉडल यूजुअली। तो उनका पूरा प्रोसेस डिफाइंड होता है, दे वांट टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट ब्रांड एंड देयर प्रोसेस, वही लोग फीको करते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइज आपको फीको दे रहा है तो इवैल्यूएट करो 90% दे आर रियली रियली गुड ब्रांड्स, ठीक है। तो ओनर को, इन्वेस्टर को सुकून मिल जाता है, और जो फ्रेंचाइज देती है ब्रांड उसका वही होता है कि मेरे एसओपीज एक्यूरेटली फॉलो हो रहे हैं, मैं इस आउटलेट को चला रहा हूँ। नॉर्मली 60-40 रेशियो में होता है, जहां पे जो इन्वेस्टर है उसको 60% मिलता है, ठीक है। 40% जो 40% ब्रांड को मिलता है, ठीक है। जितने भी पेमेंट, सैलरी, सब कुछ होता है वो इन्वेस्टेड मॉडल से जाता है उस पर्टिकुलर आउटलेट। आई होप अभिषेक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। And FICO model has also many benefits out of it as well. That there is something called minimum guarantee which an investor gets as well. कि भी मैंने 15 लाख अगर रुपए लगाए तो उसका 1% जो है हर महीने मुझे मिलेगा। मतलब there is some minimum guarantee कि 30-35,000 जो है वो हर महीने मेरे आने हैं। मतलब 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर जो पैसा लगा है वो एटलीस्ट रिटर्न। So it's benefit, but for brand सॉर्टेड नहीं है, अगर यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सप्लाई चेन मॉडल, कहीं ना कहीं आप एक ऐसा उड़ता तीर ले रहे हो जो आपको कहीं पे भी लग सकता है। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट मॉडल। सी इफ वी गो फॉर फोफो मॉडल, इफ देयर इज जस्ट अ प्रोडक्ट व्हिच इज एक कस्टमर आ रहा है और वो लेके जा रहा है और आप बिल कर रहे हो, देन आई बिलीव फोफो मॉडल इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे ज्यादा कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, राइट। फोको मॉडल जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पे कस्टमर इंटरेक्शन हो गया, फूड प्रिपरेशन हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे फोको मॉडल इंपॉर्टेंट आ जाता है। फीको मॉडल कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो बोलता है कि दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू बिजनेस, आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस बिलिंग एंड स्टफ, एंड आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट मनी। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और वो पैसा लेके आप धंधा करो और उसमें से मेरे को एक रिटर्न दे दो, एक गारंटेड रिटर्न मेरे पास आना चाहिए और प्लस आना चाहिए। दैट इज फॉर फीको मॉडल। सो एवरी बिजनेस हैव देयर ओन नीड, एंड आई बिलीव उस हिसाब से ही आपको मॉडल सिलेक्ट करने चाहिए। वी विल शेयर द डिटेल्स ऑफ दिस डिफरेंट मॉडल्स एज वेल, और उसके बीच में क्या क्या होता है। I believe email ID और contact mention कर देना है। I believe वो already we have query form has all the information for the email, phone number and everything, and it will be more easier for you guys to reach out to them individually, because then we'll give you the data together only. ऐसे मिस ना हो जाए किसी का आपके साथ। Sir, where is your proper address? I would like to meet you once and give me your contact number. Email और contact share हो जाएगा, as Divya told you guys right now. Something about MBA चाय वाला, you guys know what's going on. So उसके ऊपर मतलब it was a beautiful PR brand at a moment, but somehow जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, जो operations का जो funnel था, somewhere I believe they might have lagged it. कोई बात नहीं, होता है, वो लोग they'll be back in business. मेरे को ऐसा लग रहा है अगर वो funnel वो लोग ऑपरेट कर ले अच्छी तरीके से। शेयर अगेन नेम रिक्रूटिंग ऐप। हिमांशु फिर से बोल ले एक बार फटाफट प्लीज। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? आई जस्ट शेयर अगेन रिक्रूटिंग एप्स व्हिच यू सजेस्टेड। और अभी मैंने पेस्ट किए, अभी पेस्ट किए? यस, ये रहा रिक्रूटिंग एप्स जो है। लवली लवली, यस, आई हैव डन इट। कैन यू एक्सपांड मोर ऑन लीवर इंजन contact franchise bulls? Details would be mentioned. We would give you all the details, don't worry. It's a part of our service as well. Okay, I want to meet with you, Parth sir. How can I go for that? पता नहीं यार, मतलब मैं तो काम करता ही नहीं सीरियसली। सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं गुम हो गया, कहाँ पे था मैं? ब्रांड लैंडमार्क एजेंसी प्रोवाइड मैनपावर फॉर रेस्टोरेंट्स। ये है, देखो, ब्रांड लैंडमार्क एजेंसी, यू गाइस कैन हैव हिज नंबर, ही हैज मेंशनड इट, प्लीज फिल दिस फॉर्म। ओके, फोको एंड फोफो, व्हिच मॉडल इज बेटर टू एक्सपांड? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड ऑनेस्टली, ठीक है। फोफो मॉडल्स नॉर्मली क्या होता है, 15 लाख के कैपिंग के नीचे के रेस्टोरेंट्स के होते हैं ऑनेस्टली, वेयर जो फ्रेंचाइज लेता है उसको ही ऑपरेट करना पड़ता है। द एसओपीज एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स आर गिवन बाय द ब्रांड टू यू गाइज। फोको नॉर्मली 15 से 25-30 लाख की कैपिंग वाले मॉडल ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, वेयर
company operates it and the investor invests, but investor जो invest करता है वो उसको उधर बैठना पड़ता है functions evaluate करने के लिए, ठीक है? Need the SOP for cooking, kitchen management, staff management and tech. Franchise Bull has everything. तो पार्थ एक नीचे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पुलकित ने पूछा हुआ है, हाउ आउटलेट्स आर सेट अप विद सेम फर्नीचर एंड डिजाइंस. सो नाउ इस केस के अंदर वी ऑलरेडी हैव वन मोर कंपनी दैट इज कोर इंफ्रा लैब्स. राहुल कश्यप इज टेकिंग केयर ऑफ दैट कंपनी एंड इसमें मेजर एस्पेक्ट क्या मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. फर्नीचर जो है, अगर आप इंडिया में काफी सारे ऐसे वेंडर आपको मिल जाएंगे जो यूनिफॉर्म फर्नीचर मैन्युफैक्चर आपको करके देंगे, पैन इंडिया लेवल पे आपको डिलीवर भी करके देंगे इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. पार्ट लोड के अंदर आपको सस्ता भी पड़ता है वो, बिकॉज वो एक आपके लिए ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीपल कर रहे हैं. उनका एक पूरा का पूरा आपका ये आता है, कैटलॉग आता है जिसमें से यू कैन सिलेक्ट विच फर्नीचर यू वांट एंड दे कैन शेयर. सेम अप्लाइज फॉर द किचन इक्विपमेंट. आपको अगर सदर्न इंडिया के अंदर किचन इक्विपमेंट लेने हैं तो देयर इज अ डिफरेंट लोकेशन. अगर आपको नॉर्थ के अंदर लेने हैं तो वहां पे एक डिफरेंट, दिल्ली के अंदर एक वेंडर्स आपके अलग बैठे होते हैं, वेस्ट के अंदर अलग है. कुछ ऐसे हैं जो पैन इंडिया लेवल आपको डिलीवर भी करेंगे, और डिलीवर करने के बाद अगर वो मशीन इक्विपमेंट खराब भी होता है तो आपको लोकेशन पे सर्विस भी लाके देंगे. वी फेस्ड मेजर इशू बेसिकली इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि जहाँ पे आपने डीपर सेक्शन के अंदर वहां पे आपने किचन इक्विपमेंट पहुंचा रखे हैं, बट देयर आर सम पार्टनर्स इन इंडिया who actually provide service to that level as well. So I believe automation, furniture design के अंदर 2D और 3D is makes a very important aspect. Anybody who is initiating the outlets, कि जिनके एक दो आउटलेट हो गए और उनको बाद में फील आएगा कि यार मेरा तीसरा आउटलेट जो है कुछ और ही बन रहा है, और चौथा आउटलेट अगर आता है तो वो भी कुछ और बन रहा है, उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको अपना 2D और 3D जो है, I'll share a link with you regarding the brand which we have initiated. उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2D डिफाइन करके 3D डिफाइन कर दिया है. उसके एलिमेंट्स जो है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक एक्सेल शीट के अंदर डाला हुआ है कि उसके अंदर नल कौन सा लगेगा, उसके अंदर सनमाई का कौन सा लगने वाला है, कितना मोटा वुड रहने वाला है, काउंटर का स्टाइल क्या होने वाला है, एवरीथिंग. मतलब एक एक रुपए का हिसाब आपको मिलेगा कि ये आउटलेट बनाने में आपको 5 लाख रुपए का खर्चा होना है तो 1 रुपया कहाँ लगने वाला है. To that level, if you are able to design your 2D and 3D and the BOQ, then you will be able to scale up, और तभी आप एक यूनिफॉर्म आउटलेट डिजाइन बिल्डअप कर सकते हो. You can connect with us through the link mentioning that आपको आउटलेट इंफ्रा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, and Rahul Kashyap will address it via phone to you directly. And same goes with other equipment. फर्नीचर अगर हो गया, मैंने उसका आंसर दे दिया, किचन इक्विपमेंट का भी दे दिया है. Then we have I think Alia was saying something. We'll just take the last 5 questions. We have already narrowed them down because we're running out of time a bit now. So just to go ahead, someone asked they want to buy a franchisee. How can they choose the best one? Because they know many franchisees die over the time span of 3 to 4 years. आपका ध्यान किधर है? फ्रेंचाइज बुल्स इधर है. So get in touch with franchise bulls. You know, they'll give you the structures कि कैसे एक फ्रेंचाइज को सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके का फ्रेंचाइजीज होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ROI क्या होते हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ फॉर एवरीवन हु इज हियरिंग. सो व्हाट फ्रेंचाइज बुल इज एक्चुअली डूइंग, सो वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग फ्रेंचाइजीज, वी आर इनटू मैनेजिंग फ्रेंचाइजीज. So what usually we say कि say for example अगर somebody is an investor, जो कोई हमको आके बोलता है मेरे पास पैसा है, मुझे एक फ्रेंचाइजी लेनी है, so now it becomes our responsibility to search the right franchisee from the market and hand it over to him. And to that, for doing that, what we do, we onboard brands. और onboard brand हम लोग इस हिसाब से नहीं करते कि हम आपको onboarding फीस दे तो आप onboard कर दिया आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अभी किसी ने पूछा तो हम आपको भेज देंगे. We take at least 1 month. We take at least 1 month कि वो पूरे ब्रांड का ड्यू डिलिजेंस करते हैं हम लोग, एंड टू एंड ड्यू डिलिजेंस, कि जहाँ पे उसका ऑपरेशन, मॉडलिंग, स्ट्रक्चर, SOP, मैनुअल्स, टीम मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब उसका सॉर्टेड है या नहीं. बिकॉज ट्रस्ट मी, वी हैव सीन ब्रांड्स इन द मार्केट who on the name of PR and marketing they have done amazingly great and they are very good, but eventually आगे जाके पता चलता है that कि background में they are just a bubble, like they don't have that support system which is required for a franchisee to run, and eventually people lose out on money. So here comes the franchise bulls, where any brand we are suggesting, we are making sure that उसका basic operation और सब कुछ sorted है, and we usually communicate on behalf of the investor which comes to us कि मेरे को फ्रेंचाइजी लेनी है, तो इट बिकम्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव हिम द राइट फ्रेंचाइजी डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट. से फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मेरा बजट 5 से 10 लाख रुपए का है, तो उसके अंदर कौन सी होनी चाहिए,
वो कौन से सिटी को बिलोंग करता है, कौन से एरिया में वो सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स अ एक्सटेंसिव डिस्कशन रिगार्डिंग की व्हाट इज योर लाइकिंग। कोई अगर ये बोलता है कि मुझे कॉफी का एक फ्रेंचाइजी लेना और दे दो, दैट इज नॉट इट वर्क्स। मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, किसी ने हमको बोला कि मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरे को चाय का एक लेना है, वो बोलता है चाय का 20-25 लाख रुपए में डालने के लिए रेडी हूँ। देन वी हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट बॉस, आप जिस लोकेशन पे बात कर रहे हो या आप जिस सिटी की बात कर रहे हो, वहां पे अगर आप समझ लो आपका रेंट ही 80,000 90,000 अगर देते हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम टी। आइदर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए विच इज हाई वैल्यू, या तो फिर कॉम्बो में जाए, otherwise it becomes difficult. Eventually we shifted that person from that idea of having a tea franchisee to a proper pizza franchisee, where he was then assured कि बॉस इसके अंदर यूएसपी भी यूनिकनेस भी है। सो इट इज अ कन्वर्सेशन पार्ट, कि बातें करेंगे तो पता चलेगा। नोबडी कैन गिव यू अ स्टेट डायरेक्ट फॉर्मूला कि बॉस आप आपको ये फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। इफ समबडी इज टेलिंग यू दिस वे, आई बिलीव कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आवर इंटरेस्ट इज ओनली वन थिंग, इन्वेस्टर व्हिच इज कमिंग टू अस, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, we are going to give him something which we have already tasted, otherwise we won't give it. That's the point. Yeah, next question please. Factors to take care while fixing salaries for their staff. Okay, पार्थ इसको थोड़ा elaborate करेगा। पहले तो आप वो स्टाफ से क्या काम करवा देना चाहते हो, ऑब्वियसली वो डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला कि रेसिपी भी आपको डिफाइन करने रखती है, उसका एक स्पेसिफिक रोल ही रहना चाहिए आउटलेट में। हिज KRA शुड बी डिफाइंड, ठीक है। अगर उस आदमी को पता ना चले KRA क्या है, तो उसको हिंदी में लिख के दे दो या हिंदी में समझा दो। रिवाइज दोस 10 पॉइंट्स, पुट इट इन अ चेकलिस्ट फॉर हिम। मैकडॉनल्ड्स करती है ये चीज, इंडियन ब्रांड्स भी करती है काफी सारी, विच हैव ग्रोन बाय द टाइम। तो वो चेकलिस्ट देना जरूरी है टू ऑटोमेट द प्रोसेस। एवरी डे यू हैव टू वॉक थ्रू दैट चेकलिस्ट के यार इसने इतना इतना काम किया है। सेकेंडली, सैलरी डिसाइड करते वक्त यार मेरा तो एक ही फंडा रहता है, आई ओवर पे पीपल। मेरा यही फंडा रहता है, मैं पैसे नहीं काटता किसी के, बिकॉज आई वांट देम टू स्टे हैप्पी ऑनेस्टली। तो वो मैंने बहुत लोगों से बात करी थी पर, सो पीपल आर इन दिस वे कि 8-10 हजार में लोग मिल जाते हैं। नहीं, और वही इशू है। अगर 8-10 हजार के आप लोग लेते हो, इट्स नॉट अबाउट दैट किसी को कम पे कर रहे हो आप। पॉइंट ये है दैट अगर कोई 8-10 हजार वाला भी आपके पास आता है, दैट्स योर कैच, कि अगर आप उसको 2,000 ज्यादा दोगे ना, तो प्रोबेबली ही विल सर्व योर आउटलेट बेटर। दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, पीपल डोंट डू दैट। 2-3 हजार रुपए, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आउटलेट मैनेजर है, एक आउटलेट मैनेजर की सैलरी आपने बोला 12,000 रुपए देते हैं, बिकॉज जिनके साथ हमने बात करी हुई है, दे आर इन दैट थॉट प्रोसेस ओनली कि 12,000 से ज्यादा देना नहीं चाहिए। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल, इट्स फाइन, ठीक है, उनका अपना है। अगर 12,000 की जगह मैंने सिर्फ 8,000 इंक्रीज करके उसकी सैलरी 20,000 कर दी, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि यू गेट अ बेटर रिसोर्स टू हैंडल थिंग्स। आपके आउटलेट का रेवेन्यू अगर 3 लाख हो रहा है, तो दिस गाय who has a better understanding, better IQ, he can actually increase your revenue from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. आपका 2 लाख रुपए का रेवेन्यू वहां पे इंक्रीज हो जाता है। And we have seen it in multiple brands. Just the problem here is that you don't have a confidence in that person, or you don't have guts to actually hire that higher resource. At least manager तो आप अच्छा हायर करो। आपने दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ लेके रखा हुआ है। शेफ के केस में आता है, शेफ को भी बोलते हैं कि भी इट इज अंडरपेड जॉब। आइडियली देखा जाए तो द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट रेस्टोरेंट एंड आउटलेट इज फूड, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग योर शेफ राइट, आई हैव सीन सम ब्रांड्स, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट दोस ब्रांड्स आर पेइंग देयर शेफ हेफ्टीली, लाइक उनकी सैलरी 30-40,000 50,000 तक गई हुई है, एंड 300 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, बट वो दे रहे हैं उनको, बिकॉज वो प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो उनका रेसिपी बिगड़ा, then the brand is dead. That's why वो yearly contract करके रखते हैं उनके साथ कि boss you have understood this recipe, आप इसको properly बनाना सीख गए, we don't want that you use it, और आप चले जाओगे फिर दूसरे को कौन ट्रेन करेगा। तो उसमें भी एग्रीमेंट, लीगैलिटी में किसी ने पूछा था कि अगर कोई शेफ आपने हायर करके रखा हुआ है जो एक स्पेसिफिक रेसिपी आपकी परफेक्टली बनाता है, अगर उसको छोड़ना भी है, यू कैन नॉट बाइंड समबडी, बट अगर उसको छोड़ना भी है तो उसके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है दैट until and unless any other chef is appointed there by you, trained by you, you cannot leave. So these are certain small legalities which you need to take care of. Yes, compliance में आ जाता है। Yes, we can take next question. Next question. Someone asked that can franchisee model work with food truck businesses? Yes. Actually, I've seen this. It's this tricky. ये जिसने भी पूछा है, मैं उसको एक ही लाइन में बताऊंगा। उसमें एक ही पॉइंट है इसके अंदर, लोअर द कैपेक्स। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना कम होगा,
उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा। एक अगर मैं एक 300 स्क्वायर फीट का आउटलेट लेके बैठ रहा हूँ, दैट इज अ ब्रांड फॉर अ मोमो, एंड प्रोबेबली मैंने सिर्फ एक कियोस्क बना के रखा हुआ है, मूविंग कार्ट, मैं उसके ऊपर भी मोमोज ही बेच रहा हूँ, एंड मेरा अगर ऑपरेशन सॉर्टेड है तो मैं शायद वो दुकान से ज्यादा कमा पाऊंगा, बिकॉज थिंग्स आर नियर टू मी। वी हैव सीन दिस अहमदाबाद के अंदर, सिंधु भवन के अंदर काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कार्ट के ऊपर चलते हैं, एंड दे आर डूइंग वे बेटर देन आई बिलीव द आउटलेट्स। 300-400 स्क्वायर फीट के आउटलेट से ज्यादा बेटर वो कार्ट के बिजनेसेस कर लेते हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट, द कैच हियर इज दैट मार्केट प्रेजेंटेशन, बिल्डिंग अप अ ब्रांड एंड ऑपरेशन सॉर्ट करके रखना बहुत जरूरी है। इट्स अ रियली अमेजिंग पॉइंट। प्रोडक्ट सही होना चाहिए, सप्लाई चेन सॉर्ट होना चाहिए, एंड दैट काइंड ऑफ मॉडल वर्क्स अमेजिंगली वेल, वी हैव सीन इट। That's great. I think we'll just take the last one question. Do you guys want to choose it or you want me to just help you with it? Make a wish, Divya. चलो आप choose कर लो। Someone asked, is Coco model good for kiosk shops? Coco CO. Yeah. कंपनी डिसाइड करेगी ना कि किस पैटर्न में जाना है। See again, Coco के Same अंदर answer, what Himanshu मैं लॉजिक देता हूँ। So I have a different thought about Coco. I would have a very nice blend of Foco and Coco. Simple मैं बताता हूँ कैसे। Say for example, मेरा एक XYZ कैफे करके ब्रांड है, मैं गुजरात में हूँ और मुझे महाराष्ट्र में उसको लॉन्च करना है, तो द फर्स्ट आउटलेट विच आई प्लेस विल बी इन मुंबई और पुणे, एंड दैट टू बी अ बिगर 400-500 स्क्वायर फीट का बड़ा मॉडल होगा वो, और वो कोको मॉडल पे होगा। कंपनी विल इन्वेस्ट इनटू इट। व्हाई? बिकॉज कंपनी के हाथ में कंट्रोल रहता है पूरी चीजों का, एंड इफ द प्रोडक्ट इज सॉर्टेड द आउटलेट रन्स। द मोमेंट उस स्टेज में वहां पे आउटलेट अगर बिल्डअप हो जाता है, तो उसके बाद यू माइट सेल अ मास्टर फ्रेंचाइजी देयर। मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं अगर जा रही है तो आप एक फ्रेंचाइजी बेचोगे, उसके अंदर आप फोको बेचोगे। स्टेज नंबर 2 इज फोको। व्हाई? बिकॉज नाउ योर आउटलेट इज देयर, यू कैन मैनेज द सप्लाई चेन, एंड यू डोंट वांट कि भी आपके बाद जो आउटलेट खुल रहे हैं उसमें भी इश्यूज हो। तो वहां पे आपको फोको करने पड़ेंगे, गेट द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द फ्रेंचाइजी एंड मेक श्योर दैट योर पर्सन एंड योर मैनेजमेंट इज एक्चुअली वर्किंग टू मेक दैट आउटलेट प्रॉफिटेबल। वंस यू हैव टेकन अप द टेरिटरी, कि मैंने अगर पुणे सिटी के अंदर एक मेरा सेंट्रल कोको मॉडल है और मैंने 10 फोको मॉडल बिल्डअप करके रखे, एंड थिंग्स आर मूविंग इन अ वेरी नाइस शेप, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है अच्छा। इक्का दुक्का आउटलेट जो एक आउटलेट है उसमें इशू आ रहे हैं, बट मैनेजमेंट हैज दैट गट्स दैट यू नो दे कैन हेल्प दैट आउटलेट टू ग्रो। तो ऐसे करके अगर आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ द ओवरऑल सप्लाई चेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, तभी जाके आप फोफो पे जाओ, क्योंकि तभी आप फोफो पे जाओगे। और अगर सामने वाला सिर्फ देखने वाला है और वो भी अगर समझ लो बिलिंग करेगा वहां पे बैठ के, तो उसको ऑलरेडी सारे सिस्टम बिल्ड करके आपके आसपास मिले हुए, देयर इज ऑलरेडी अ नेटवर्क सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्हिच इज ऑलरेडी बिल्ड। सो नेवर इफ एनीबॉडी टेल यू नहीं भाई फोफो ही करना चाहिए, या कोई बोले नहीं फोफो ही कर लो, दैट इज रॉन्ग। इट हैज टू बी प्लेस्ड इन अ मैनर, कोको शुड कम फर्स्ट। आप अगर आपका खुद का ही ब्रांड का खुद का ही आउटलेट अगर नहीं है तो कौन लेगा, राइट? उसके बाद अगर 10 आउटलेट आपने खोल के रखे हुए, वो अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा है, उसका अगर समझ लो बिलिंग विलिंग नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, या फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो व्हाई वुड एनीबॉडी इन्वेस्ट? बट इफ यू आर एबल टू गेट दिस राइट, हैंडलिंग दिस थिंग, तो आप आगे जाके फोफो कर सकते हो। कुछ ब्रांड्स गलती क्या करते हैं भाई, ब्रांड नेम अच्छा हो गया, फोफो बेचो, पैसा लो अंदर, और बाद में उनको जो करना है वो करने दो, एंड इवेंचुअली व्हेन दे फेल दे जस्ट से दैट यू नो हमने तो आपको ब्रांड नेम दिया हुआ था एंड यू कैन टेक केयर ऑफ द आउटलेट। धंधा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वी कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉसेस, बिकॉज धंधा 50-50% है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस आर द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट पीपल से। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, बट द चैलेंज हियर इज दैट दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट जब आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स व्हाई आई सेड दैट फ्रेंचाइज विल मेक श्योर दैट कोई भी ब्रांड अगर ऑनबोर्ड करके रखा, ऑनबोर्ड करा हुआ है, वी मेक श्योर दैट यू नो उसका ड्यू डिलिजेंस डिटेल में हो। We don't want to get into a situation where people, the investors जिनको हमने कुछ recommend किया था, they come to us and they say कि आपने तो काट दिया हम लोगों का। So it is very much important to have a good relation and identification of the brands. I believe we can take a last question. Anybody कोई identification? So I Hello. think like a repetitive question of where someone was asking about manpower resources, that just let me find that one. Hello. Yeah. Was someone saying something? I believe Nibras- Hello. And it is Nibras ji, Nibras Kareem. Nibras Can you Kareem. type your question, please? We'll take it. Hello. Is it audible right now? Yes, audible. Please tell me. Yeah, actually, I just wanted to know that you were talking regarding SOP.
So SOP, we had talked regarding 4 perspectives. We have to build SOP. Like we are currently having an outlet. So we are based out here in Cochin. So we are currently running 4 outlets. So all the outlets we are running on a FOCO model. So Okay. the first outlet is Coco, and then the rest of the 3 outlets are on FOCO model. So what we are doing is that our major things are this shawarma, barbecues, and taba rolls. That's what we are doing. So what we find is that like this SOP thing. Right now we have 2 set of masalas which is going on. Like one is dry masala, and then another one is wet paste. So I was actually discussing with some other brands also regarding how we can move forward to FOFO model. So if we are moving forward with FOFO model, like what we are doing, that chicken marination right now is with wet paste. So, but if we want to scale up to other cities like Hyderabad, Bangalore, and all such kind of cities, we can only send the dry powder, but that might affect the quality of our product. Right. So, is there any other kind of methodology we can do that thing? Nibras, this answer, ideally upra upri we can answer it, but if you really want an answer, I'll give you a very basic. We have a team member from in our team whose 3 generations have been into cooking, chef, specific Okay. chef, and they have worked for top brands, and they have seen the expansion of multiple brands across India. I would want, rather than me, I believe I won't be the right expert to explain that thing to you, because वो food preparation से related चीजें आती है, technical आ जाती है. If you can connect with us, I'll get you in touch with that chef, the in-house chef, and he will give you an explanation regarding how you can solve it, because it is technical. Anything which I say, it should come with a value or some credibility behind it. So I believe I have a better person who can give the right credibility to you. So please connect us. I'll connect you with the head chef. Nivraj, you can just Okay, sir. fill the Okay, form thank and you. we'll get you in touch with the team. Yes. Yeah, I have already filled the form. Great. Super. Great. Then Okay. Pat's team will come in touch with you definitely. Okay, thank you very much. Thank you so much. Okay, great. I think we've already extended our time quite a bit. So I think we'll wrap. Such lovely people, such lovely questions. So time extend kar diya. Yeah. Yeah. With Pat, this always happens. So we were expecting it today. So it's not a new thing for us now. For anyone whose questions were not answered, you don't have to worry about it. Pat's team, Franchisables team, Paid Puja's team, they all are there. Everybody will have the access to the form that you have filled. We will be answering all the questions out there. If you haven't filled it yet, please do fill it now. We're going to keep it in the chat box already. Parth and Himanshu and the whole team of Franchisables and Motorbike Lives, thank you so much for coming on board with us for doing this webinar. It was genuinely very insightful and very amazing. I'm sure everybody would agree. Everybody can put in a feedback of how you like the webinar. Thumbs up or like a good or whatever it is that you want. And if there's any other criticism, we would love to know that also. Thank you so much, Divya. Thank you so much, the entire team of Paid Puja. They are a bunch of rock stars. हर बार कुछ ऐसा सही और logical करते रहते हैं. And one more thing, yes, I would request one more session really very soon. This session was quite exciting. But next time beer आने के बाद वापस. ठीक है? Yeah, done. We'll definitely be planning one more soon with you guys. Lovely. Thank you so much, Divya. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you so much. Everyone, and looking forward to connect with you all very soon. Please fill the form and let's get in touch. Thank you, guys. I'll just Thank stay you, on like a minute or two so that Thank you so everybody much. can fill in the form. Yes, please keep it open so that. Yeah, hi Divya. Hello. Can you please everybody write it on the chat box? It'll be more easier for us to communicate that way with you guys. Yeah, there's a I'm not able to hear, but please just put it in the chat box. We'll address whatever question it is. Parth and Himanshu, you can take a leave. That's fine. I'll just keep it on just for 1 minute so that they can get the link of everything. Thank you so much for coming here. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys. Bye. Bye-bye. We're just keeping the webinar on for like a minute more, guys. Just click on the link or like copy the link so you guys can fill it. And if there's any question, and if after this webinar you want to get in touch with us,
Paid Puja POS is our Instagram handle. You can just DM us over there and we'll help you with whatever you guys need. And thank you so much everyone for the great feedback. We genuinely are open to all the suggestions that you guys have. In the form also, we have a suggestion box there. You can always put in the topics that you want us to cover next. Thank you guys. Thank you guys. We'll log off now. If there's anything, you can always message us on our WhatsApp groups. You have our numbers on the WhatsApp community group as well as our Paid Puja POS DM. Thank you so much. And yes, for the people who asked for the recording, one last thing, we will be sharing the recording of the entire webinar on our YouTube channel. Again, by Paid Puja POS is our YouTube channel. You can get the recording of the whole webinar there. Thank you so much, guys. Bye-bye.